my dear students, welcome back to Geometrics classes for mathematics. In previous class, we discussed about classification of numbers. In this video, we will discuss about decimal representation of a real numbers. तो आपको पहले से मालूम है there are two types of real numbers, rational number and irrational number. So we will discuss the decimal expansion of rational numbers. There are two types of decimal expansion of rational numbers. Number one, terminating. Number two, non-terminating. Repeating or recurring. What is terminating? Suppose we have a number 3 upon 2. Can you divide 3 by 2? If you divide 3 by 2, then 2 1 ja 2, 1 carry, decimal 0, 2 5 ja 10. We will see that in this case remainder is 0, 1.5. When you divide 3 by 2, you will get 1.5 and remainder is 0. Then this type of decimal expansion of rational number is called terminating. Suppose we have 3 by 4. If you divide 3 by 4, decimal 0, 3 7 ja, 4 7 ja, 28, 2 remainder, 0, 4 5 ja, 20. You will get remainder 0. This is equal to 0.75. If you divide 3 by 5, 3 divided by 5. So simple, put decimal, put 0, 5 6 ja 30. You will get remainder 0. In this case 0.6. Next 3 by 25. Divide 3 by 25. When you divide 3 by 25, decimal 0, 25, 1 ja 25, remainder 5, put 0, 25, 2 ja 50. You will get remainder as 0. This is equal to 0.12. Suppose we have a number 7 by 20. Divide 7 by 20. Put decimal 0, 23 ja 60, 10, put 0, 25 ja 100. You will get 0. In this case, you will see this is equal to 0.35. So what is terminating decimal representation? You see that if you divide numerator by denominator, after long division, after some steps, you will get remainder 0. This type of decimal representation is called terminating. What is the condition? You will see that if the denominator is either 2 or 5 or both, then the decimal expansion will be terminating. So condition for terminating. The decimal expansion of a rational number p by q where p and q both are co-prime. Co-prime means
द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन P and Q is 1. So the decimal expansion of rational number P by Q, where P and Q are co-prime, will have terminating if the prime factorization of denominator is either power of 2 or power of 5 or both. Here this is power of 2, this is power of 2, this is power of 5, 5 power 1, this is power of 5, 5 power 2, this is 2 and 5 both. 20 is 4 5 ja 20, 4 into 5, so 2 power 2 into 5 power 1. So this is in the form 2 power m into 5 power n, where m and n are non-negative integers. तो कंडीशन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, rational number should be in the form P by Q, where P and Q are co-prime, Q not equal 0, and prime factorization of Q is 2 power m into 5 power n, where m and n are non-negative integers. M and n are non-negative integers. तो बच्चों कोई भी गिवन होगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो आप बिना डिवाइड किए बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग. छोटा नंबर हो डिवाइड करके भी देख सकते हो, और बिना डिवीजन के आप कैसे बताओगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग. जैसे मान लो 6/15 लिखा हुआ है, आपको बोला गया ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो आप क्या करोगे, फैक्टर बनाओगे. तो सबसे पहले आप देखो कि ये जो है को प्राइम है, को प्राइम नहीं है, क्योंकि ये भी 3 से डिविजिबल है और 15 भी 3 से डिविजिबल है. तो सबसे पहले आप इसे कैंसिल करो, कॉमन फैक्टर को कैंसिल करना है. 3 2 जा 6, 3 5 जा तो 2/5. तो डिनोमिनेटर आपका इस फॉर्म में है, 2 पावर m इंटू 5 पावर n. कैसे, तो ऊपर तो 2 है, अपॉन में नीचे 2 नहीं है, तो 2 का पावर 0 लिख दो, क्योंकि हमने बोला m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, 0 नॉन नेगेटिव इंटीजर है, और इंटू 5 है तो 5 का पावर 1. ये इस फॉर्म में है, इसलिए आप कह सकते हैं कि 6/15 इज टर्मिनेटिंग. कई बच्चे क्या करते हैं कि सीधा डिनोमिनेटर को ब्रेक कर दिया और बोलते हैं ये टर्मिनेटिंग है. वो गलत है. सबसे पहले आप चेक करो, कई बार गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में कुछ कॉमन फैक्टर रह जाता है तो आपको लगता है कि ये टर्मिनेटिंग. जैसे मान लो कि दिया हुआ है 141/1500. अब आप देखेंगे अगर डिनोमिनेटर को ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 15 हो गया, और इंटू 100 है तो 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2, और 5 पावर 2 और एक ये 5 है, तो इसको अगर हटा दें तो 5 पावर 3 आ जाएगा. अब आप देखोगे कि डिनोमिनेटर में 3 है और आप बोलोगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 से ये डिविजिबल है. 3 4 जा 12, 21, 3 7 जा, तो ये नंबर हो जाएगा 47/2 पावर 2 इंटू 5 पावर 3. नाउ this is in the form 2 power m into 5 power n, so we can say that this is terminating. अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की. सपोज करो आपके पास नंबर है एक 10/3. 10 को 3 से जब आप लॉन्ग डिवीजन करोगे तो 10 डिवाइड बाई 3 कर लेते हैं. 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर डेसिमल 0, 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर 0, 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर 0, 3 3 जा 9. We will see that remainder never becomes 0 and repeating block 3.3333 डॉट डॉट डॉट. इसका मतलब इसे हम 3.3 के ऊपर बार लगा देते हैं. अब अगर आप 1/7 करें, 1 को 7 से डिवाइड, तो फिर देखते हैं
1 को 7 से आप डिवाइड करोगे, 22/7 लेते हैं, 22/7, तो यहां पर 22 लिख देते हैं हम और 7 से डिवाइड करते हैं। 7 3 जा 21, 1 कैरी डेसिमल 0, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14, 6 0 60, 7 8 जा 56, 4 रिमाइंडर 40, 7 5 जा 35, 5 7 7 जा 49। अब आपका 1 आ गया, तो 1 आ गया, फिर से ये प्रोसीजर रिपीट होगा। इसका मतलब यहां पर हम बार लगा देते हैं, तो ये आ गया 3.142857। अब इसके बाद ये रिपीट होगा, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इस तरह से अब आप देखें तो डिनोमिनेटर में 2 5 नहीं है, 2 5 के अलावा क्या है, 3 है, 7 है। अगर मान लो 2 है और 3 है, 2 3 जा 6, सपोज करो 5/6 है, तो क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा? नीचे तो 2 और 3 दोनों है, 5 में ब्रेक अगर करें तो 2 × 3 है। अब यहां पर आप देख रहे हैं 2 है, 3 भी है, क्या ये टर्मिनेटिंग होगा? नहीं, क्योंकि ये इस फॉर्म में नहीं होगा। डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, आइदर 2 हो और 5 हो और बोथ हो, अलावा 3 आ गया तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। आप चेक कर लो। फिर 5 को 6 से डिवाइड करते हैं, डेसिमल 0 50, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, तो 8 से करते हैं 48, रिमाइंडर बच गया 2, 20, 6 3 जा 18, 2 आ गया 20, 6 3 जा 18, 2 आ गया 20, 6 3 जा 18। इस तरह से ये क्या होता जाएगा, 0.83 पे बार आ गया। तो अब आप देख रहे हैं नीचे 2 होते हुए भी ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब इसी तरह से नीचे अगर 5 होगा और साथ में कोई अलग दूसरा नंबर होगा तब भी वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो कंक्लूजन ये हुआ कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज said to be non-terminating repeating if the prime factorization of denominator is not the power of 2 or power of 5 other than 2 or 5. Non-terminating repeating. Next, the decimal expansion of irrational नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स जानना जरूरी है, क्या होता है, √2। अगर आप 2 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आएगा 1.4142 ... जब 2 का स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो कंप्लीटली आप निकाल नहीं सकते, खत्म नहीं होगा, कभी साल बीत जाएगा, कई साल लग जाएंगे, डिवाइड करते जाओगे कभी खत्म नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ऐसे ही आप √3 ले लो, 1.73205 ... इसी तरह से पाई ले लो। पाई क्या होता है, सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर, C/D। आप देखो सरकमफेरेंस, किसी सर्कल का सरकमफेरेंस आप निकालोगे तो वो रैशनल नंबर आएगा। डायमीटर निकालोगे, मेजर करो स्केल से, वो भी रैशनल नंबर आएगा। लेकिन C/D जो है ये ग्रीक लेटर पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इरेशनल होता है, क्योंकि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो ये डेसिमल में करेंगे इसको तो 3.14159 ... ऐसे होता है। हमारे ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्टा ने पाई का 4 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू निकाला, रामानुजन ने लाखों प्लेस तक निकाला, सुपर कंप्यूटर ने ट्रिलियन प्लेसेस तक पाई की वैल्यू निकाला।
डेसिमल के बाद ट्रिलियन प्लेसेस। सोचो पाई का वैल्यू क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्योंकि ये कभी एंड ही नहीं होगा। लेकिन ये सोचना गलत होगा कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है तो 22/7 भी इरेशनल होगा। कंपेयर कर लो, 22/7 ये है रिपीटिंग 1428, ये आ रहा है 14159 डॉट डॉट डॉट। तो आप कहेंगे 3.14 क्यों रैशनल होता है? 3.14 जो है रैशनल होगा क्योंकि वो हम टर्मिनेटिंग में लेते हैं। यहां पर तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है और 3.14 भी एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ पाई, अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 और 3.14। अब ये 22/7 और 3.14 दोनों रैशनल नंबर है, लेकिन पाई जो है वो इरेशनल है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 22/7 तो पाई है। अब एक बच्चे से मैंने पूछा 22/7 रैशनल है या इरेशनल, तो बच्चे ने कहा इरेशनल। मैंने पूछा क्यों, तो क्योंकि पाई की वैल्यू है, पाई इरेशनल है तो 22/7 इरेशनल। ये सोचना गलत है क्योंकि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, हम कैलकुलेशन के लिए 22/7 यूज करते हैं। अब ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि रैशनल नंबर को दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। टर्मिनेटिंग वो होगा जिसको डिवाइड करने के बाद डेसिमल में आ जाए, रिमाइंडर 0 हो जाए। और उसका कंडीशन क्या होता है? कंडीशन ये होता है कि P और Q को प्राइम हो और Q इस फॉर्म में हो, 2 पावर m इंटू 5 पावर n में हो, तो आप कहेंगे उसे टर्मिनेटिंग। अगर 2 या 5 के अलावा कुछ और हो, दोनों नहीं हो, दोनों के अलावा कोई और आ जाए तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल है। अब इरेशनल की कैटेगरी में क्या आता है? तो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। तो इन दिस वे वी कैन से दैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, or if a decimal expansion is terminating or non-terminating repeating, then it is rational. Decimal expansion of irrational number is non-terminating and non-repeating. Non-terminating and non-repeating. इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये रूट में वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो सारे नंबर क्या होंगे? इरेशनल होंगे। और इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और उसमें एक एक्स्ट्रा पाई आ जाता है। जब कभी आपको इरेशनल नंबर ढूंढना हो तो आप देखो, रूट लगा दो और परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, जैसे परफेक्ट स्क्वायर 1 हो गया तो रूट 1 तो 1 होता है, रूट में 4 जो है ये 2 होता है, तो ये क्या है? रैशनल में आ जाएगा। बाकी पाई हो गया। डेसिमल में भी आप लिख सकते हैं इसको 0.101 001 0001 और डॉट 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 कर दो, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ना कभी टर्मिनेट। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। अब हम कुछ बात कर लेते हैं, जैसे इसको हमने डिवाइड करके देखा तो डेसिमल में चेंज हुआ। क्या हम विदाउट डिवीजन कैन वी कन्वर्ट दिस इन डेसिमल फॉर्म? यस, वी कैन कन्वर्ट दिस इन डेसिमल फॉर्म विदाउट एक्चुअल डिवीजन। हाउ? तो इसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जैसे 10 है तो 10 को आप क्या लिखते हो? 2 इंटू 5, 2 का पावर कितना है? 1, 5 का पावर 1। यहां पर एक 0 है तो पावर 1 है। अब अगर 100 कर दिया तो ये हो जाएगा 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2। यहां 1000 कर दिया तो ये हो जाएगा 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3। यहां 10,000 कर दिया 2 पावर 4
इंटू 5 पावर 4। अब आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि 1 0 तो 2 और 5 का पावर 1 है, 2 0 है तो पावर 2 है, 3 0 है तो पावर 3 है, 4 0 है तो पावर 4 है। तो इस तरह से जितने जीरो होंगे 1 के ऊपर उतना पावर लगा देते हैं 2 और 5 में। अब आप देखिए कि डिनोमिनेटर में अगर 10 हो जाए किसी नंबर के नीचे, जैसे 7/10 है, तो आप क्या लिखेंगे 0.7। 7/100 है, क्या लिखेंगे आप 0.07। 7/1000 है, क्या लिखेंगे आप 0.00007। तो इस तरह से डिनोमिनेटर में अगर 10 हो, 100 हो, 1000 हो तो इसे हम बड़ी आसानी से डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसी बात का फायदा उठा के बिना डिवाइड किए आप चेंज कर सकते हैं टर्मिनेटिंग वाले को। डिनोमिनेटर में 2 हो या 5 हो या उसका मल्टीपल हो तो आप चेंज कर सकते हैं। विदाउट एक्चुअल डिवीजन यू कैन कन्वर्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इनटू डेसिमल फॉर्म। p/q फॉर्म से कन्वर्जन ऑफ p/q फॉर्म इनटू डेसिमल फॉर्म। हाउ, सपोज 3/2। अब आप यहां क्या करो, 2 का पावर 1 है तो 5 पावर 1 से कर दो मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 और 5 10 दे देगा। तो ऊपर हो गया 15 और नीचे हो गया 10। अब आप नीचे जीरो देखिए, एक जीरो है तो डेसिमल आप 1 डिजिट के बाद लगाएंगे। अब ये हो गया 1.5, है ना आसान। तो फिर क्या करेंगे 3/5 है। अब आप इसे किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, क्योंकि नीचे 5 है तो 2 5 जा 10, ऊपर 6 हो गया नीचे 10 हो गया, इसे आप लिख सकते हो 0.6। अब 7/20 है तो आप 20 को ब्रेक कर दो, 4 5 जा 20, 4 मतलब 2 पावर 2 और इंटू 5। अब आप देखो सिंगल 5 है, यहां पावर 2 रहेगा तब आप 2 जीरो लगा सकते हो। तो ऐसा करने के लिए क्या करना होगा आपको 5 से मल्टीप्लाई। जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर को तो दिस विल बिकम 35 एंड अपॉन दिस इज 10 पावर 2 यानी कि 100, दैट इज 0.35। अब 2 जीरो नीचे आ गया तो ये क्या हो जाएगा 2 डिजिट के बाद डेसिमल हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर 7/40 लिखा हुआ है तो 7/8 5 जा 40 तो 8 मतलब 2 पावर 3 इंटू 5। अब आप देखिए यहां पर 3 बार 2 है, 5 1 टाइम है तो आप 5 को पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 इंटू 5 पावर 2 कर दिया ऊपर और नीचे 2 पावर 3 इंटू 5 पहले से है 5 पावर 2 करोगे तो 7 इंटू 25 हो गया, अपॉन में 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3 हो गया। 25 इंटू 7, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 2 जा 14, 3 17 175 बाय 10 का पावर 3 हो जाएगा ये। तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे तो 175 1 2 3 डेसिमल लगा दीजिए 0, तो ये आपका हो गया 0.175। ये था कन्वर्जन ऑफ p/q फॉर्म इनटू डेसिमल फॉर्म। क्या हम डेसिमल फॉर्म से वापिस इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? यस। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू p/q फॉर्म। अब p/q फॉर्म में डेसिमल से कन्वर्ट कैसे करेंगे? वेरी सिंपल। 1.5 है, आप क्या करें डेसिमल हटाएं, नंबर लिखें, नीचे 1 लिख करके जितने डिजिट के बाद डेसिमल है उतने जीरो लगा दें। तो 15/10 हो गया। अब इसे कैंसिल कर दें कॉमन फैक्टर से, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है, 5 2 जा और ऊपर हो गया 5 3 जा, तो दिस विल बिकम 3/2 हो गया ना, 3/2 में चेंज। एक और ले लेते हैं एग्जांपल, ये है 0.6। 0.6 को चेंज करना है p/q फॉर्म में, आप लिखेंगे 6/10, क्योंकि 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, 1 लिख के उस पर 1 जीरो लगा दिया। अब इसे कट करेंगे, 2 कॉमन फैक्टर है, 2 5 जा 10, 2 3 जा, तो ये बन गया 3/5। ये देखिए 3/5। अब ये 0.35 ले लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नंबर को एज इट इज लिख देंगे, डेसिमल के बदले 1 लिखेंगे, डेसिमल के आगे जितने डिजिट है 1 2 तो 2 जीरो लगाएंगे। अब इसे कैंसिल करेंगे, 5 कॉमन फैक्टर है, 5 2 जा 10, 0 5 7 जा, दिस विल बिकम 7/10।
20। अब देखिए 7/20 आ गया। तो इन दिस वे यू कैन कन्वर्ट p/q फॉर्म इनटू डेसिमल फॉर्म एंड डेसिमल फॉर्म इनटू p/q फॉर्म। नेक्स्ट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जैसे अब ये 10/3 था तो 10 को 3 से डिवाइड किया तो डेसिमल में चेंज हो गया। अब जैसे इसमें हमने टेक्निक से बिना डिवाइड किए किया हमने चेंज, तो इसको डिवाइड किए बगैर नहीं कर सकते, इसको तो डिवाइड करना ही पड़ेगा। डिवाइड करके हम इसमें चेंज करेंगे, लेकिन इसको हम इसमें चेंज कर सकते हैं। वो कैसे? तो देखिए, कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इनटू p/q फॉर्म। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को p/q फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? एक तो अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगाना, अगर ये सब्जेक्टिव में आ जाए तो सब्जेक्टिव अप्रोच। तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच बताता हूं। यहां पर जैसे 0.1 बार है, सिंपल सी बात है, जैसे डेसिमल हटाते हैं बार भी हटा देंगे, नंबर को एज इट इज लिखिए, अपॉन में जितने डिजिट पे बार है उतने 9 लिख दीजिए, तो ये 1/9 हो गया। 0.12 जैसे इसमें बताया मैंने, जितने डिजिट पे बार है उतने 9 लिखते हैं, तो इसको भी हम सिर्फ 12 लिखेंगे, अपॉन में 2 बार 9 लिख देंगे क्योंकि 2 डिजिट पे बार है। अब आप इसे कैंसिल कर दें, 3 4 जा, 3 3 जा, 3 3 जा, तो ये आ गया 4/33। अब अगर 0.123 तीनों पे बार है, आप क्या करेंगे? 1 2 3 3 बार 9। अब ये 3 से कैंसिल होगा, 3 4 जा, 1 जा, 3 3 3, ये हो जाएगा 41/33। है ना? बार वाले को इसमें चेंज कर दिया, मतलब डेसिमल के बाद जस्ट बाद अगर 1 पे बार है तो 1 9, 2 पे बार है तो 2 9, तीनों पे बार है तो 3 बार 9। अब आप देखिए कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जिसमें बार भी होता है, नॉन बार मिक्स्ड होते हैं। जैसे 0.12 लिख दिया हमने, 2 पे बार लगा दिया, 1 पे बार नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? इस नंबर में से 1 को माइनस कर दीजिए, अपॉन में एक डिजिट पे बार है तो 1 9 लिखिए, और ये नॉन बार है डेसिमल के बाद तो 1 0 लगाना ना भूलें, तो ये हो जाएगा 11/90। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 0.12 और 3 पे बार है। आपको क्या करना है? जैसा कि हमने बताया, नंबर को एज इट इज लिखना है, फिर नॉन बार को माइनस करना है, नॉन बार 12 हो गया। अब आपको जितने डिजिट पे बार है उतने 9 लिखने हैं, जितने पे बार नहीं है उतने 0 लगाना है। अब 123 में से 12 को माइनस करेंगे, 3 - 2 1, 2 - 1 1, और ये 1 आ गया, नीचे 9 0 0 हो गया। ठीक है? आपको लगता होगा कि 1 1 1 कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल होगा। सम देखो, 1 + 1 + 1 3, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से हम कैंसिल कर देते हैं। 3 3 जा 9, 2 11 20, 3 7 जा, 3 3 जा 9 0 0, तो ये हो गया बेटा 37/300। इस तरह से अब एक और ऐसे ले लेते हैं जो यहां 0 के बदले कोई नंबर आ जाए, मान लो 1.27 पे बार है। अब क्या करोगे आप? तो 127 लिखो और माइनस करना ना भूलें, और अपॉन में 2 डिजिट पे बार है 2 9। क्या हम 0 लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, ये डेसिमल के इस तरफ है। 0 तब लगाते हैं जब डेसिमल के बाद नॉन बार वाला होता है, जितने डिजिट उतने 0 लगाते हैं, ये ध्यान रखना है। 7 - 1 6 हो गया, ये 2 हो गया, अपॉन में 99, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 3 जा 9, फिर 3 से 14, और ये 3 से 11, तो इसका आंसर आ गया 14/11। तो इस तरह से अगर आप ये टेक्निक सीख लेंगे तो ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएगा, JSTS में काम आ जाएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव मेथड कन्वर्जन का थोड़ा सा लंबा है। तो ये था हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रियल नंबर। इसमें हमने आपको कन्वर्जन सिखाया, कंडीशन सिखाया, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग ये सिखाया। अब इससे आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं हम अब ये जो इरेशनल नंबर है रूट वाले,
अब इसका देखते हैं कि किस तरह से रैशनल के साथ क्या बिहेव करता है इरेशनल नंबर। जैसे मान लो 2 + √2 है, ये कौन सा नंबर होगा? ये रैशनल है और ये इरेशनल है। जब आप सम करेंगे तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। सम और डिफरेंस करो तब भी ये इरेशनल नंबर होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं पाई -22/7 रैशनल होगा या इरेशनल? कई बच्चे सोचते हैं कि ये 22/7 हो गया, माइनस करके 0 आ गया, रैशनल हो गया। वो गलत होगा, क्योंकि ये मैंने जैसा कि यहां पर बताया था, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई का वैल्यू कुछ और है, और जब हम पाई में से इरेशनल में से रैशनल को माइनस करेंगे ये हमेशा इरेशनल नंबर देगा। अब प्रोडक्ट में ले लेते हैं, जैसे 3√2 है। प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, तो ये भी इरेशनल नंबर हो गया। डिवाइड में ले लेते हैं 3/√2, ये भी इरेशनल नंबर होगा, या √2/3 वो भी इरेशनल नंबर होगा। अब मैं यहां पर बताने जा रहा हूं कि किस तरह से इरेशनल को रैशनल में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट अगर रहता है तो कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो डिफिकल्ट ना हो इसके लिए हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें इरेशनल को रैशनल में कन्वर्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग irrational denominator into rational is called rationalization of denominator। अब इसके लिए क्या करते हैं, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपको मालूम है ऊपर तो 3√2 ही रहेगा, नीचे √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। अब ये हो गया रैशनल, तो इसको बोलते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। व्हाट इज रैशनलाइजिंग फैक्टर? तो व्हेन the product of two irrational becomes rational, then both are called rationalizing factor of each other। अब rationalization factor जैसे आपने यहाँ पर देखा कि √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया 2 हो गया, तो इसका मतलब √2 का √2 ही हो गया rationalizing factor। अब बात करते हैं rationalizing factor of √50। What is rationalizing factor of √50? तो सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर जानने के लिए इसको आप फैक्टराइज कीजिए। 5 × 5 × 2, ये हो गया 5√2। अब आप देखेंगे कि रूट में 2 है, इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल में चेंज हो सकता है, तो इसे हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 × 2 दैट इज 10। अब ये रैशनल नंबर बन गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल इज रैशनल देन बोथ आर कॉल्ड रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ईच अदर। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √50। सिंपलेस्ट वर्ड इसलिए जोड़ रहा हूं कि बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं इरेशनल नंबर जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, √50 को √50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी 50 हो जाएगा। तो सिंपलेस्ट का मतलब हुआ सबसे छोटा, सिंपल फॉर्म में। तो √2 ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √50 होगा। देयरफॉर रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √50 इज √2। अब बात करते हैं कि अगर 1/√a + √b है तब रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। तो अब आप ऐसे सिचुएशन में प्लस की जगह माइनस ले लें, कॉन्जुगेट बोलते हैं इसको, कि प्लस है तो माइनस ले लें, माइनस है तो प्लस ले लें, नंबर वही रहने दें। तो इसे हम ऊपर लिखेंगे √a - √b और नीचे भी सेम चीज √a - √b। अब ऊपर तो यही रहेगा √a - √b, लेकिन नीचे फॉर्मूला लग जाएगा। आपको मालूम है a + b × a - b a² - b² होता है, तो √a × √a का स्क्वायर हो गया माइनस √b × √b का स्क्वायर हो गया। तो ऊपर √a - √b हो जाएगा, अपॉन में a - b हो जाएगा। तो इस तरह से आप रेशनलाइज कर सकते हैं। रूट हट गया, प्लस है तो माइनस से, माइनस है तो मल्टीप्लाई से। तो इस तरह से रेशनलाइज करके डिनोमिनेटर को आसान कर सकते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अब बात करते हैं सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन कि दो इरेशनल का सम कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए √2 है और आपको
सम निकालना है रूट 8 से। तो आपको ये देखना है कि दोनों का ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम है तो आप इसे ऐड कर सकते हैं। आप कैसे ऐड करेंगे, इसको चेंज करिए, रूट 2 प्लस रूट 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आप देखिए पेयर बन गया 2 का, तो एक बाहर निकाल लेंगे, ये हो गया 2 रूट 2। अब आप रूट 2 यहां भी है, रूट 2 यहां भी है, कॉमन ले लें तो 1 प्लस 2 जो रैशनल नंबर है ब्रैकेट में लिखेंगे, इरेशनल को कॉमन ले लिया बाहर, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 रूट 2। अब आपको देता हूं रूट 18 रूट 32। अब इसको ऐड करना है, क्या करेंगे आप इसे सिंपल फॉर्म में चेंज करें, 3 3 9 2 जा 18। अब ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। अब आप पेयर बनाए, यहां पर 3 इंटू 3 का पेयर बन गया, एक बाहर आ गया रूट 2, और यहां पर 2 पेयर बाहर आ जाएंगे, तो 2 इंटू 2 बाहर आ गया, दैट इज 4 रूट 2। अब आप रैशनल को प्लस करें 3 प्लस 4 और बाहर में कॉमन रूट 2, 3 प्लस 4 7 हो गया, 7 रूट 2, है ना बढ़िया। तो इस तरह से प्लस कर सकते हैं। यही प्लस की जगह माइनस हो जाता, जैसे मान ले रूट 18 माइनस में रूट 32 है, आपने देखा रूट 18 को ब्रेक किया 3 रूट 2 आया, 3 रूट 2 लिख दिया, माइनस में ये 4 रूट 2 है। जब आप 3 माइनस 4 करेंगे और बाहर रूट 2, तो ये आंसर हो जाएगा आपका माइनस रूट 2। तो इस तरह से प्लस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब आप देखिए, इसको मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं। रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 8 है, तो आप एक रूल देखिए, रूट ए इंटू रूट बी इक्वल रूट ए बी लिख सकते हैं। कंडीशन यहां पर यह है कि ए और बी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपको बोले क्या ये रूट -2 इंटू रूट -3 इक्वल रूट -2 इंटू -3, ये रूट 6, क्या ये ठीक है? ये गलत है, ऐसे नहीं ले सकते हैं। ए और बी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो रूट के अंदर नेगेटिव रियल नंबर के अंदर नहीं आता है। ए और बी जब पॉजिटिव होगा तो ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ए हमारा रूट 2 है, ये हमारा रूट 8 है, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 8 दैट इज रूट 16, और ये हो गया आपका 4। और क्या रूट 16 को हम -4 भी लिख सकते हैं? अब आप यहां पर एक बात समझिए, 4 इंटू 4 करेंगे 16 होगा, -4 इंटू -4 करेंगे तब भी 16 होगा। तो क्या रूट 16 को हम +-4 लिख सकते हैं? ये गलत है, कई लोगों को मालूम नहीं रहता। ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं रेडिकल साइन। क्या बोलते हैं? रेडिकल साइन। और ये रेडिकल साइन का मतलब हो गया, ऐसे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, पर रेडिकल साइन में हम पॉजिटिव ही लेते हैं। तो रूट 16 में सिर्फ और सिर्फ 4 लेंगे, ये बात का ध्यान रखें, नॉट -4। रूट 16 में 4 लेंगे, नॉट -4। -4 नहीं लेना। स्क्वायर रूट पॉजिटिव वैल्यू देता है हमेशा, याद रखो। अब रेडिकल की बात किया हमने, थोड़ा ये मल्टीप्लिकेशन देख लिया। अब अगर आपको एक डिवीजन भी दे देता हूं, रूट 2 बाई रूट 8 है, कैसे डिवाइड करेंगे? तो इसके लिए मैं आपको एक रूल बताता हूं। पहले रूल ये है कि रूट ए को डिवाइड करेंगे रूट बी से, तो अब आप एक ही रूट के अंदर a बाई बी लिख सकते हैं। अगर रूट 2 डिवाइड बाई रूट 8 है तो आप इसे लिख दें 2 बाई 8 और ऐसे रूट लगा दें, कट हो जाएगा 1 4। तो ये हो गया रूट के अंदर 1/4, 1 का रूट तो 1 होता है, 4 का रूट 2 होता है, 1/2 आंसर आ गया। तो ये सेम ऑर्डर में था तो मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड कर लिया, ऐड कर लिया। अब अगर आपको डिफरेंट ऑर्डर का 2 इरेशनल दे दे और बोला जाए कि मल्टीप्लाई करो रूट 2 और क्यूब रूट 2 मान लो, क्या आप मल्टीप्लाई कर पाओगे? नहीं। तो इसमें क्या करना होता है? ऑर्डर सेम करना पड़ता है। ऑर्डर सेम करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। इसका ऑर्डर 2 है, एलसीएम ऑफ 2, और इसका ऑर्डर 3 है, 2 and 3 एलसीएम 6 हो गया। तो अब इसे भी 6th ऑर्डर में चेंज करो, इसे भी 6th ऑर्डर में चेंज करो। तो स्क्वायर रूट 2 है, ये हो जाएगा 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, 6th और पावर में 3 लगा देंगे, ये हो गया 6th
ये 8 हो गया। अब ये क्यूब रूट 2 है इक्वल टू 3 2 जा 6, यहां पर 6 लिखेंगे और 3 2 जा 6 तो 2 का पावर 2 हो गया, 6 रूट 4 हो गया। तो इस तरह से अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लें, रूट 2 इंटू क्यूब रूट 2 इक्वल हो जाएगा 6 रूट 8 मल्टीप्लाई 6 रूट 4। अब ये सेम ऑर्डर में आ गया तो 6 रूट 8 इंटू 4 कर देंगे, दैट इज 6 रूट 32। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है विच इज ग्रेटर, अब इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, ये या ये। तो इसके लिए आपको सेम ऑर्डर में कन्वर्ट करने के बाद आप देखेंगे कि ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है। तो या तो लिखें रूट 6 रूट 4 इज लेस देन 6 रूट 8। तो 6 रूट 4 किसके इक्वल है, इसके। तो क्यूब रूट 2 जो है इज लेस देन स्क्वायर रूट 2। तो इस तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि राइट असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आपको एलसीएम ले लेना है, सेम ऑर्डर में चेंज कर लेना है, फिर उससे पता चल जाएगा आपको कौन बड़ा है कौन छोटा है। असेंडिंग मतलब स्मॉलर टू बिग, डिसेंडिंग मतलब बिग टू स्मॉल। तो उस तरह से आप उसको अरेंज कर सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। कुछ लॉज हैं, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, अब फिर से पढ़िए। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बताने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि स्क्वायर रूट में अगर मान लो लिखा हुआ है 3, अब इसे पावर नोटेशन में 3 पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब अगर क्यूब रूट 2 लिखा हुआ है तो 2 का पावर 1/3 लिख सकते हैं। ये 3 जो है यहां 1/3 हो गया। फोर्थ रूट 5 लिखा हुआ है, 5 पावर 1/4 लिख सकते हैं। अब इसे मान लीजिए 243 लिखा हुआ है और यहां पर फिफ्थ रूट दिया हुआ है, क्या होगा वैल्यू, कोई सिंपल है फिफ्थ रूट ऐसे लिख दिया। अब इसको जब ब्रेक करोगे 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243, 1 2 3 4 5, 5 बार 3 है, यहां फिफ्थ रूट है तो ये हो गया 3। आप इसे पावर नोटेशन में भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि फिफ्थ रूट 243 है। अब इसे पावर नोटेशन में कैसे लिखेंगे, 243 का पावर 1/5। अब इसे पावर नोटेशन में लिखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं 243 में हमने क्या किया, 3 पावर 5 लिख दिया और ये 1/5 है। अब ये 3 पावर 5 इंटू 1/5 ये कट गया, आंसर आ गया 3। तो ये आता है रूल से, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से। अब वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में बताता हूं। लास्ट टॉपिक इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। जब आप किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, जैसे मान लो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो इसको लिखते हैं 3 पावर 4। ठीक है, लॉज में फर्स्ट लॉ है a पावर m इंटू a पावर n इक्वल टू a रेज टू पावर m प्लस n। जब आप किसी को 4 बार मल्टीप्लाई किए तो 3 पावर 4 हो गया, इसको बेस बोलते हैं और इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो इसी एक्सपोनेंट से रिलेटेड और बेस से रिलेटेड कुछ लॉज हैं कि अगर सेम बेस पर डिफरेंट पावर आ जाए, डिफरेंट एक्सपोनेंट आ जाए तो आप दोनों को ऐड कर देंगे। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 2 पावर 3 आ गया इंटू 2 पावर 2 आ गया, तो अब आप इसे लिख सकते हो 2 पावर 3 प्लस 2 दैट इज 2 पावर 5। फिर कैलकुलेट कर लें। सेकेंड, बेस सेम हो और डिवाइड हो, a पावर m डिवाइड a पावर n तो इक्वल हो जाएगा a पावर m माइनस n। फॉर एग्जाम्पल 2 पावर 3 डिवाइड बाय 2 पावर 2 इक्वल टू 2 पावर 3 माइनस 2 दैट इज 2 पावर 1 इक्वल टू 2। थर्ड में ये था मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में पावर ऐड, ये था डिवाइड, डिवाइड में पावर माइनस, और पावर पे पावर हो a पावर m होल पावर n
तो आप ऐसे केस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने दिखाया 3 पावर 5 है और उसके ऊपर 1/5 है, तो आप क्या करोगे, 3 पावर 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से 5 कट गया, आंसर 3 आ गया। तो इस तरह से इसका यूज करते हैं। दूसरा है कि a पावर -m, तो इसको आप, पावर नेगेटिव है तो आप रेसिप्रोकल कर देंगे और पावर को पॉजिटिव कर देंगे। जैसे 2 पावर -3 है, इसे लिखेंगे 1/2 पावर 3। अब 5 में अगर a पावर m इंटू b पावर m आ जाए। अब इस केस में यहां पर देखिए बेस सेम था, पावर अलग था, डिफरेंट। यहां पर बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो आपको क्या करना है, ए बी को इकट्ठा लिख करके पावर m लिख देना है। जैसे 2 पावर 3 और 5 पावर 3 आ जाए, पावर सेम है तो 2 इंटू 5 लिख के एक साथ आप 3 लिख सकते हैं, 10 पावर 3 आ गया। नेक्स्ट है डिवाइड में a पावर m डिवाइड बाय b पावर m है, आप a बाय b लिख करके होल पावर m लिख सकते हैं। सेम ले लेते हैं एग्जांपल 2 पावर 3 बाय 8 पावर 3, तो आप इसे 2/8 होल पावर 3 लिख सकते हैं, कट गया 1/4 पावर 3, ये आंसर आ गया। इसके बाद जीरो की बात कर लेते हैं। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो आंसर 1 आता है।